Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. See? Constantly trying to find its way to reflect itself, and they could not do it. यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, समझे? वो मुसलसल अपने आप को जाहिर करने के तरीके को तलाश कर रहा है और लोग इस लायक नहीं बन सकते. The people thought so much of their denominations, their little nest that they had and so forth, called their churches, that they wouldn't listen to it. So do they do it today. Same thing, crucify afresh. लोग अपनी तंजीमों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं. उनके अपने छोटे छोटे घोंसले हैं और वगैरह वगैरह, जिन्हें वो चर्चिस कहते हैं. बस वो खुदा की नहीं सुनेंगे. बस वो आज भी वैसा ही कर रहे हैं, यानी दोबारा उसे सलीब दे रहे हैं. Peter on the day of Pentecost, he said, "You men that dwell in Jerusalem, in Judea, hearken to my words. These are not drunk. If you'll stand still, I'll show you what it is." And he goes ahead and explains to them. पतरस ने पेंतीकोस के दिन उसने कहा, तुम जो यहूदिया और यरूशलेम के रहने वाले हो, कान लगाकर मेरी बातें सुनो. ये नशे में नहीं है. अगर तुम चुपचाप मेरी बातें सुनो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये क्या है. और फिर वो आगे बढ़ा और सारी बातें उन्हें समझाईं. Well, their hearts was pricked when they heard this. So what can we do to be saved? What can we do to receive this? We're convinced that your word is right. जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी. उन्होंने कहा, हम क्या करें कि निजात पा सकें? इसको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम मान गए हैं कि तेरी बातें ठीक हैं. He said, "Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost, for this is to you and your children, them as far off, even as many as the Lord our God shall call." This is what they got to do. Repent, be baptized in the name of Jesus Christ. उसने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुछ इनाम में पाओगे. क्योंकि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा. यही था जो उन्हें करना था. तौबा करनी थी और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना था. And today, the Roman Catholic Church adopted Father, Son, Holy Ghost to take that place. Instead of that, a communion. Lick out a tongue and take a wafer, and the priest drink the wine, and you're one together. The communion, instead of being the Holy Ghost, called Holy Eucharist. और आज रोमन कैथोलिक चर्च ने उस नाम की जगह बाप, बेटे और रूह कुछ को रख दिया है. पाक ईशा की बजाय वो ये करते हैं कि एक पतला सा बिस्किट जुबान पर रखते हैं और सारी मैं प्रीस्ट पी जाता है और कहते हैं हम सब एक हैं. और पाक ईशा में वो पाक रूह की बजाय पाक रोटी कहते हैं. And the Father, Son, Holy Ghost, a Trinitarian baptism was not even spoke of in the Bible. Amen. The name of Father, Son, Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. और उनके पास बाप, बेटे और रूह कुछ का एक तसलीसी बपतिस्मा है जो कि बाइबल में नहीं दिया गया. बाप, बेटे और रूह कुछ का नाम तो खुदावंद यीशु मसीह है. And when you show that to this onward generation, as Peter said, save yourself from this onward generation. When you show it to them, what do? Make fun of it and say, our church don't teach it that way. Then you're guilty. और जब ये सारी बातें आप इस टेढ़ी नस्ल को दिखाते हैं, जैसा पतरस ने कहा था, इस टेढ़ी कौम से अपने आप को बचाओ. जब आप उनको ये बातें दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं हमारा चर्च इस तरह नहीं सिखाता. तब आप कसूरवार हैं. You're guilty of the crucifixion of Jesus Christ by taking the power of God away from the people. You crucify the very word to them, and you condemn yourself with your congregation. Lead them into a death trap. तब आप यीशु मसीह को मसलूब करने के कसूरवार ठहरते हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत को लोगों से अलग करते हैं. आप कलाम को उनके लिए मसलूब करते हैं और आप अपनी कलीसिया के साथ इसे रद्द करते हैं. ये उनको मौत के फंदे में फंसा देता है. As I said about that minister last Sunday, there's Martin Luther King down there with them precious people, leading right into a death trap. Oh, somebody could only talk that man. Wish I could. जैसा कि मैंने गुज़िश्ता इतवार उस मुनाद के बारे में कहा था, वो मार्टिन लूथर किंग के मुतालिक था, जिनके साथ कीमती लोग हैं. वो ठीक उन्हें मौत के फंदे में लिए जा रहा है. हो, काश उस आदमी को कोई समझा सके. काश मैं कर सकता. Just for a little uprising of a school proposition. See, what difference? My goodness, if the people ain't got hard enough to associate with a man because of his color, they're condemned and dead anyhow. फक्त एक स्कूल को ऊपर उठाने का अमल है, समझे? या कुछ क्या फर्क है? मेरे खुदाया, क्या लोगों में इतनी समझ नहीं है
कि वो एक आदमी से जुड़ रहे हैं क्योंकि वो उनकी नस्ल का है। जो भी हो, वो लोग मुर्दा और कसूरवार हैं। The nation gives them right. Don't fight against it. Don't. What if somebody said all the Irish or somebody, all the German or somebody else had to dissociate? That would never bother Christians. They'd move right on. रियासत ने उन्हें हक दिया है, मगर उसके खिलाफ लड़ाई मत करें, मत करें। क्या हो अगर कोई कहे तमाम आयरिश या कोई कहे तमाम जर्मन या जो कोई भी है इससे अलग हो जाए, मगर इन चीजों का मसीहों पर कोई असर नहीं होगा, जबकि उन्हें फौरन अलग हो जाना चाहिए। And that man's a Christian, is a minister. He shouldn't lead them people into a revolt against that. They're going to cause millions to die. It'll start another revolutionary, and it's a shame to do that. वो एक मसीही आदमी है और एक खादम होते हुए उसे उन लोगों की बगावत के लिए रहनुमाई नहीं करनी चाहिए। उनका ये अमल लाखों लोगों की मौत का सबब बन सकता है। इससे एक और इनकलाब शुरू हो जाएगा और ऐसा करना शर्म की बात है। The same thing happens right here. Exactly the same thing again. That's right. See, the people, how that they'd only look at truth and see what truth is. Our church don't believe that. We got some other way. Well, it ain't the right way. It ain't the thing. ठीक यही बात आज हो रही है। बिल्कुल वही बात दोबारा हो रही है। ये सच है। समझे, आज लोग सच्चाई को किस नजर से देखते हैं और जान भी लेते हैं कि सच्चाई यही है और कहते हैं हमारा चर्च इस पर ईमान नहीं रखता, हम किसी और तरीके से मानते हैं। ठीक है, मगर ये दुरुस्त तरीका नहीं है, ये वैसी बात नहीं है। He said, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now, they won't do it. Oh, then what do? Now, that's just one thing upon hundreds. We'll get to maybe as fast as we can. उसने कहा, तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। हो, फिर वो क्या करते हैं? अब इस बात पर सैकड़ों बातें की जा सकती हैं और हो सके तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी हम कर सकते हैं। Now, the second crucifixion then. If a man accepts Father, Son, and Holy Spirit a creed instead of the Word, titles instead of the name, what does he do to the people? He crucifies the effects of the Word to the people. When he says that Mark 16 was just for that generation. अब फिर दूसरी मसलूबियत को देखें। अगर कोई आदमी कलाम की बजाय बाप बेटे रूल कुछ के एक अकीदे को लेता है, यानी इन अलकाब को लेता है उस नाम की बजाय, तो वो लोगों के लिए क्या करता है? वो कलाम के असरात को लोगों के लिए मसलूब करता है। और जब वो ये कहता है कि मरकज 16 तो सिर्फ उस जमाने के लिए था। And God said himself right there, Jesus talking to him, said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them. और खुदा ने खुद कहा, और ठीक है, यीशु ने वहां उनसे बातें करते हुए ये कहा था, जाओ सारी दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा, और उनके दरमियान ये मुजज़े होंगे। How for every nation, every creed, every tongue, every race, every people, the same gospel. And these signs shall follow them that believe. ये किनके लिए है? हर एक कौम, हर एक मजहब, हर एक जुबान, हर एक नस्ल, सब लोगों के लिए है। ये एक जैसी अंजील है और जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान ये मुजज़े होंगे। And when a man tries to cut that out of the Bible, he crucifies the effects of the gospel to that congregation. Hallelujah. So I indict you in the name of Jesus Christ. You're guilty of murdering the Lord. जब कोई शख्स बाइबल में इन बातों को हटाने की कोशिश करता है, तो वो अंजील के असर को लोगों के लिए मसलूब करता है। बस मैं आप पर यीशु मसीह के नाम में फर्द जुर्म लगाता हूँ, आप खुदावंद को कत्ल करने के कसूरवार हैं। The church hated him. Why? He was their very God. They hated him and denied him to be their Messiah. No, sir. They didn't want such a Messiah as that. कलीसिया ने उससे नफरत की। क्यों? जबकि वो उन्हीं का खुदा था। उन्होंने उससे नफरत की और उसको अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया। नहीं जनाब, वो उस जैसा मसीहा नहीं चाहते थे। And today, the church does the same thing. It denies the word. They don't want it.
It's contradictory to what they've been taught to believe by their creeds. और आज कलीसिया वही कुछ कर रही है, ये कलाम का इनकार कर रही है। लोग कलाम को नहीं चाहते क्योंकि जो कुछ उनके अकीदों के मुताबिक उन्हें सिखाया गया है, कलाम उसके खिलाफ है। And the Word is the Messiah. You believe that? Well, the reflection of the Word then is what? Amen. A reflecting the Messiah, which is the Holy Ghost among us. Amen. He's reflecting Himself. Try to where if He can find a lamp that He can look through, they smoked up with creeds and things. Amen. He can give light through. और कलाम मसीहा है। क्या आप ईमान रखते हैं? ठीक है, तो फिर कलाम का परतु क्या है? परतु मसीहा है, जो रूल कुछ हमारे दरमियान है। वो अपने आप को जाहिर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि कहीं पर उस चिराग को जला सके जिसके जरिए वो जाहिर हो सके। ऐसा चिराग जिसमें रस्म रवाज का धुआं ना हो, ताकि उसकी रोशनी उसके वसीले अया हो सके। Remember, they rose and trimmed their lamps and washed out the chimneys, but it's too late. So when a man sees these Lutheran, Presbyterian, Methodists trying to come into these last days to receive the Holy Ghost, why, you know they don't get it. याद करें, वो उठी और उनकी मशलें बुझने लगीं और उन्होंने अपनी मशलें दुरुस्त की, मगर तब बहुत देर हो गई थी। बस जब लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट के लोग आखिरी दिनों में रूल कुछ पाने की कोशिश करेंगे, तो आप जानते हैं वो उन्हें नहीं मिलेगा। Oh, they might speak in tongues and jump up and down, but watch what happens. They absolutely, it's a time sign that she's over. We're at the end. Most any time the church can hear the challenge to come on high. Amen. खैर, चाहे वो गैर जुबाने बोले, ऊपर नीचे उछले, मगर देखे क्या होगा। बिल्कुल, ये वक्त का निशान है कि उसका वक्त खत्म हो गया है। हम इख्तिताम पर हैं। किसी भी वक्त कलीसिया उस ललकार को सुनेगी और ऊपर चली जाएगी। आमीन। Just exactly setting us in order. The Holy Spirit here making Jesus Christ a reality through the ones that He can work through, proving Himself, come down, takes His picture, shows it, makes science, talk about it, everything else, proving just exactly what He said He would do. वक्त सारी बातें तरतीब से पूरी हो रही है। रूल कुछ उनके जरिए, जिनके जरिए वो काम कर सकता है, यीशु मसीह को एक सच्चाई के रूप में जाहिर कर रहा है। वो खुद को साबित कर रहा है। वो नीचे आया, उसकी तस्वीर ली गई और दिखाई गई। साइंस ने उसे लिया, इस पर गुफ्तगू की गई और सब कुछ किया गया, और जैसा उसने कहा था वैसा वो करेगा, ये साबित किया। Doing exactly the things He said He would do. Scripturally, not some creed or some man's worked up idea, a lot of blood, fire and smoke and stuff, but a scriptural, messiah evidence. वो ठीक वैसे ही काम कर रहा है जिनको करने की बात कलाम में मौजूद है। अब ये बातें किसी अकीदे या किसी इंसान की सोच के मुताबिक नहीं हो रही हैं। ये लहू, आग और धुआं और दूसरी चीजें कलाम के मुताबिक मसीहाना गवाही हैं। Got a lot of impersonations and impersonators and so forth, but that only makes the real word shine its best. Right. That's people who are spiritual who can judge between right and wrong. See? बहुत सी नकलें और बहुत से नकाल यहाँ हैं और वगैरह वगैरह, मगर इनसे तो सच्चा कलाम और भी अच्छी तरह से चमकता है। और ये दुरुस्त बात है, जो लोग रूहानी हैं वो खुद देखें, जो गलत और ठीक में इम्तियाज कर सकते हैं वो देखें। Denies Him. Denied their Messiah. We didn't want Him. The same thing they do today. Well, if I had to go down there and act like that bunch, I don't want it at all. All right, then you don't have it at all. That's all. Same now. उन्होंने इनकार किया, अपने मसीहा का इनकार किया, कहा हम उसे नहीं चाहते। आज भी लोग वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे वहां जाकर उस झुंड जैसा अमल करना है तो फिर मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब वो सब आपको मिलेगा भी नहीं। बस ठीक है, समझे, वही हालत आज है। Although He was properly identified, they didn't want Him. They hated Him. Why was it? We called their pastors a bunch of snakes. He said, you bunch of whited walls, you're nothing but a graveyard. हालांकि मसीह की पहचान पूरी तरह कराई गई थी, मगर वो उसे नहीं चाहते थे। उन्होंने उससे नफरत की। ऐसा क्यों था? हम उनके पादरियों को सांपों का झुंड कहते हैं। उसने कहा था, तुम सफेदी फिरी दीवारें हो, तुम एक कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं। The outside of his polished with robes and turned around colors, and the inside's dead man's bones. He didn't pull no punches, one little bitty Galilean.
a carpenter's son. But he didn't pull no punches. He told him. बाहर से तो तुम खूबसूरत चोगे पहने दिखाई देते हो, मगर अंदर से मुर्दों की हड्डियों से भरे हो। देखे, उसने मुक्के नहीं मारे। उन्होंने कहा, ये एक आम गलीली है, ये एक कारपेंटर का बेटा है, मगर उसने उनकी तरफ कोई मुक्के नहीं कसे। उसने उन्हें कहा, Don't think John said, the forerunner of him, said he's another didn't pull any punches. He said, don't come around here saying how you got Abraham to our father. God's able these stones to rise children of Abraham. मत सोचो, यूहन्ना ने कहा था, जो कि उसका पेशरू था। कहा, बल्कि ये एक दूसरा था जिसने मुक्के नहीं कसे थे। उसने कहा, यहाँ तुम मत कहते आओ कि इब्राहिम हमारा बाप है। इब्राहिम के लिए तो खुदा पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। Yes, sir. The axe is laid to the root of the tree, and every tree that don't bring forth fruit, hewed down and cast into the fire. Yes, sir. God is strict and firm and stern with His word. Yes, sir. जी हाँ जनाब, दरख्त की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। जी हाँ जनाब, खुदा अपने कलाम के बारे में बहुत सख्त और पक्का और मजबूत है। जी हाँ जनाब। Notice, Jesus proven by the Scripture. Do you hear me? Jesus was identified by God through the Scriptures that He was Messiah. Is that right? ध्यान दें कि यीशु कलाम के मुताबिक साबित हुआ था। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु को साबित किया गया था कि वो मसीहा है। क्या ये सच है? We'll get to Peter's indictment in a few minutes and you'll find out whether it was or not. He was thoroughly identified that he was God manifested in a man called the Son of God. That's right. कुछ ही देर बाद हम पतरस की लगाई गई फर्दे जुर्म देखेंगे कि ये बात ठीक है या नहीं। उसकी पूरी तरह से तस्दीक की गई थी कि वो इंसान में खुदा था, जिसे खुदा का बेटा कहा गया था। ये सच है। Although he was properly identified and vindicated the promised word that he was Messiah, Moses said this Messiah, when he comes, he'll be a prophet, and all these things will take place. अगरचे खास तौर पर उसकी तस्दीक की गई थी और वादे के कलाम को साबित करके बताया गया था कि वो मसीहा है। मूसा ने कहा था, जब वो मसीहा आएगा और वो नबी आएगा तो ये बातें होंगी। The little woman with the standing at the well and all that dirty condition that she was, what did that symbolize? That God in these last days would pull out outcast. वो औरत जो उसे कुएं पर मिली थी, कितनी गंदी हालत में थी, ये किसी बात की अलामत थी कि इन आखिरी दिनों में खुदा हकीर और निकाले हुए लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। Remember last night at the wedding, or the other time I preached here at the wedding supper, they said, how they said, I've made a great feast and so forth. याद करें, गुज़िश्ता रात शादी के या किसी दिन शादी की ज़ियाफत पर मैंने मुनादी की थी। शादी की ज़ियाफत पर उसने कहा, किस तरह उसने कहा, मैंने बड़ी ज़ियाफत की तैयारी की और वगैरह वगैरह। And all these men, I bid them, and each one had an excuse. I can't do it because it would ruin our creeds. I can't come because I have married a wife. She won't let me come. I got married to a church down here. My mother was Methodist or Baptist or Catholic, or I just can't stand it for that. और उन सब लोगों को जिनको मैंने दावत दी थी, उनमें से हर एक ने बहाना पेश किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे हमारे अकीदों की बर्बादी हो जाएगी। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने एक बीवी से शादी की है और वो मुझे आने नहीं देगी। मैंने यहाँ एक कलीसिया से शादी की है। मेरी माँ मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या एक कैथलिक या प्रोट, ये मुझे नहीं आने देगी, इसलिए मैं इन बातों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। He said, and you won't come and you won't taste my supper, but get out there and compel prostitutes and harlots and drunkards and whatever there is. Bring them in, I'll straighten them up. उसने कहा, और तुम नहीं आओगे और तुम मेरी ज़ियाफत से नहीं खाओगे, बस तुम जाओ और शराबियों और कसबियों और गंदे लोगों को और जो कोई भी हो उन्हें मजबूर करके ले आओ, उन्हें अंदर ले आओ और मैं उन्हें अपनी कुव्वत से भर दूंगा। I made my supper and my guests, my table's set, and there's going to be somebody there. They didn't come. It's condemning them Jews. What about today?
मैं खाना तैयार कर चुका हूँ और मेरे मेहमान नहीं आए। मेरी मेज तैयार है और किसी न किसी को तो मुझे बुलाना ही है, वो नहीं आए। उसने उन यहूदियों को मुजरिम ठहराया। मगर आज के बारे में क्या ख्याल है? I belong to the Presbyterian. I'm Lutheran. I'm a oneness. I'm a two-ness. I'm a this. I can't. There you are. You won't be there then. That's exactly what he said. All right. मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं नहीं आ सकता। मैं मेथोडिस्ट या लूथरन हूँ, मैं एक वाला हूँ, मैं दो वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। ये है आप, और फिर आप नहीं होंगे। यही है, बिल्कुल उसने कहा, ये ठीक है। Properly a vindicated Messiah. Properly a vindicated. The Word, the promised Word. The God that promised the Word, that this what the Messiah would be. Here he come and stood exactly. वो पूरी तरह से तस्दीक किया हुआ मसीहा था, पूरी तरह से साबित शुदा कलाम था, जिस कलाम का वादा किया गया था। खुदा ने कलाम में वादा किया था कि मसीहा आकर क्या करेगा, और वो उसी कलाम के मुताबिक उसी वक्त वहां खड़ा था। He said to him, now, where have I failed? If you can't believe me as a man, believe the works that I do. For they are the things that tell who I am. They're the ones that says I'm Messiah. उसने उनसे कहा, अब बताओ मैं कहाँ नाकाम हुआ हूँ। अगर तुम मुझ पर इंसान होने की वजह से ईमान नहीं लाते, मगर मेरे कामों का तो यकीन करो जो मैं करता हूँ, क्योंकि वो गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरे काम ही कहते हैं मैं मसीहा हूँ। You don't want to believe me because you think that Joseph over there and I was born over there in that little hut and my foster father here is a carpenter down there. तुम मेरा यकीन नहीं करते हो क्योंकि तुम सोचते हो जहाँ यूसुफ रहता है, मैं वहाँ उस छोटी सी झोंपड़ी में पैदा हुआ था और मेरा पालने वाला दुनियावी बाप वहाँ एक कारपेंटर है। And you, when he come into Galilee there, and was going to make, he said, "Here, who is this fellow? Who is this? Well, this man isn't Joseph and all them his brothers here, isn't his sisters with it, isn't his mother called Mary and his daddy called Joseph?" और जब वो गलील में आया तो वो उनके दरमियान बहुत कुछ करना चाहता था। किसी ने कहा, अरे ये शख्स कौन है? ये कौन है? ठीक है, क्या ये वो शख्स नहीं? क्या यूसुफ और इसके सब भाई यहाँ नहीं? क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? क्या इसकी माँ मरियम और बाप यूसुफ नहीं? Where did you get a guy like that? What school did he come from? He has no fellowship card. He don't have any credentials. Where did a guy like that? Where'd you get this at anyhow? And the Bible said he is offended. इस तरह के लड़के को तुम कहाँ से पकड़ लाए हो? ये कौन से स्कूल से पढ़ा है? इसके पास तो रफाकती कार्ड भी नहीं है, इसके पास कोई सनद नहीं है। इस तरह के लड़के को तुम कहाँ से लाए हो? कहाँ से तुमने इसे पकड़ा है? और बाइबल फरमाती है ऐसी बातों से उसके दिल पर चोट लगी। He said many mighty works he could not do and just turned his back and walked away from him. He said a prophet's not without honor except among his own people. In his own county. Watch, or in his own country. उसने कहा वो वहां बहुत बड़े बड़े काम ना कर सका और वहां से वापस उनसे दूर चला गया। उसने कहा एक नबी अपने लोगों के अलावा कहीं बेइज्जत नहीं होता, समझे? अपने ही देश में देखे या अपने ही मुल्क में। There he is, properly vindicated the Messiah. Took no credit of his own. He said, I can do nothing but what I see the Father doing. And he challenged them to ask if that was the Messiah. वो यहाँ मुकम्मल तस्दीक किया हुआ मसीहा था। उसने अपने आप को शोहरत नहीं दी। उसने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वही करता हूँ जो बाप को करते देखता हूँ। और उसने उन्हें चैलेंज किया कि वो देखें कि वो मसीहा है या नहीं। And look at that little old ill-famed woman. She recognized it. She wasn't undocumented. The lamp, she was morally wrong, of course. No one would endorse that. The laws of God condemn that. और उस हकीर और बदनाम औरत को देखें, उसने उसे पहचान लिया। वो समाज से कटी हुई थी, मगर चिराग बुझा नहीं था। बेशक वो इखलाकी तौर पर गलत थी, कोई उसको ठीक नहीं कहेगा। खुदा की शरीयत उसको मुजरिम ठहराती है। She was morally wrong, but see, God don't judge you upon your what you are. He judges not how big you are, how little you are. He judges your heart, what you want to be. वो इखलाकी तौर पर गलत थी, मगर वो देखे
खुदा आपकी अदालत ये देखकर नहीं करता आप क्या है, और वो आपकी अदालत ये देखकर नहीं करता कि आप कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। वो तो आपके दिल की जांच करता है कि आपके दिल में क्या है। And she didn't want none of that stuff that was just flashed before. That's what she wanted. No matter what she was then, she's ready to come. और वो इन बातों को बताना नहीं चाहती थी, और जब उसके सामने ये जाहिर कर दिया गया तो यही तो था जो वो चाहती थी। इससे कोई मतलब नहीं वो कैसी थी, मगर वो खुदा के पास आने के लिए तैयार थी। देखें, God judges the heart. Man judges the outward appearance. God looks upon the heart. No matter what she was, that light flashed and that settled it. She caught the essence of eternal life. इंसान जाहिरी हालत को देखता है, मगर खुदा दिल पर निगाह करता है। खुदा दिल देखता है। कोई मतलब नहीं वो क्या थी, मगर जब उस पर नूर चमका तो उसने सब कुछ ठीक कर दिया। उसने अब्दी जिंदगी का जोहर उसे दे दिया। Oh my, how rich this is to me. To see and know that it's the truth, I'll stand by this. The God of heaven will raise up, and my voice will be on the magnetic tape of God's great time yonder. And it'll condemn this generation in the last day. हो मेरे खुदाया, ये बात मेरे लिए कितनी उम्दा है। समझे, देखे और जाने कि ये सच्चाई है। यही है, यही तो है। इसी के साथ खड़ा होना है। मुझे बताने दे, आसमान का खुदा मेरी तरफ से खड़ा होगा और मेरी आवाज इस मकनातीसी टेप पर खुदा के अजीम आने वाले वक्त में गूंजती रहेगी और आखिरी जमाने की नस्ल को मुजरिम ठहराएगी। It's on magnetic tape then to be on the eternal tape then. Trying to condemn this generation of preachers who has a form of godliness and denying the power of the word and the manifestation when it's properly identified that he's still Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. I indict them by the word of God. क्योंकि ये जो आज मकनातीसी टेप पर है, मगर उस वक्त अब्दी टेप पर होगा। ये सच है। ये इस पीढ़ी के मुनादों को मुजरिम ठहराएगा जो दीनदारी की वजह तो रखते हैं मगर कलाम के असर को कबूल नहीं करते। और जबकि ये बात मुकम्मल तौर पर साबित और जाहिर कर दी गई है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तो मैं खुदा के कलाम से इन पर फर्दे जुर्म लगाता हूँ। I have to get to another promise quickly because we only got about 15 minutes. There they what? Oh, Calvary. They crucified. Thirdly, they crucified him not by recognizing God's promised word made manifest. मुझे जल्दी एक और वादे पर आना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। वहां उन्होंने क्या किया? हो मेरे खुदाया, कलवरी पर, और उन्होंने उसे मसलूब किया। तीसरी बात है, उन्होंने उसे खुदा के माऊदा कलाम के ज़हूर को ना पहचानने की वजह से सलीब दे दी। And why did they crucify that man? Could you just imagine? Let me go back a minute. Why would them people crucify a man like that? उस शख्स को क्यों उन्होंने मसलूब किया? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? एक मिनट के लिए मुझे पीछे जाने दें। इस तरह के शख्स को वो लोग क्यों सलीब दे रहे थे? As I read a book one time called The Prince of the House of David. It's wrote by Dr. Ingram, wonderful book. It's a drama. It's supposed to be partly true of some old manuscript that's taken off of a woman named Adina. मरियम, एक मर्तबा मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम दाऊद के घराने का शहजादा था। उसको इंग्राहम, बल्कि डॉक्टर इंग्राहम ने लिखा था। एक शानदार किताब है और ड्रामे की सूरत में लिखी गई। कुछ पुराने मुसव्वदात से एक अडयाना नाम औरत से लिया गया था जो किसी हद तक हकीकत था। She went over to Palestine from down in Egypt to Cairo, I believe it was, to finish her education. She was there during a time of Christ, and she was supposed to write back to her father. वो लड़की मिस्र के शहर कायरा से फलस्तीन में गई थी। मैं सोचता हूँ कि वो अपनी तालीम पूरी करने वहाँ गई थी और मसीह के वक्त में वो वहाँ थी और उसने ये सारी बातें अपने बाप को लिखी। It'd be good if you picked it up and read it. It's really good. Prince of the House of David. The same man wrote Pillar of Fire, and out of that, Cecil DeMille stuck the Ten Commandments. ये अच्छा होगा कि आप इसको लें और इसको पढ़ें। ये एक अच्छी किताब है। दाऊद के घराने का शहजादा।
इसको उसी शख्स ने लिखा है जिसने आग के सतून को लिखा था, और इसी में से रहनुमाई लेकर सिसल डी मिल्स ने 10 अहकाम लिखी थी। Now, we find it in this book, this Adina wrote back, and she said, on the day of the crucifixion, that Mary Magdalene, upon whom he cast out 7 devils, run out before the crowd and said, what has he done? हम देखते हैं कि इस किताब में डियाना यूं तहरीर करती है, और वो कहती है कि सलीब देने वाले दिन मरियम मगदलीनी वहां थी। ये वही थी जिसमें से यीशु ने 7 बदरूहें निकाली थी। ये दौड़कर भीड़ के पास गई और उनसे पूछा, इसने क्या किया है?